لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد ما في الوجود صلى الله في كل الوجود عن النقطة الدائرة الوجود الخاتم لما سبق الفتح لمن غلق صاحب الوالي الحمد ومقام المحمود المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد والہ طیبین طاہرین المعصومین المنتجبین المقبولین المبعوث فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو أصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة صلوات محمد وعلی محمد. عزیزان محترم حاضرین عزیزان سید الشہداء علیہ السلام، یہ سراہی کی تقریر ہے اور حسین قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ کسی کے آنے جانے میں کوئی ڈسٹرب اور کسی کو تکلیف ہو. حسینیت ہمیشہ راستہ دیتی ہے، کبھی روکتی نہیں ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ گلی میں، کوچے میں، شہر میں، منطقے میں، بستیوں میں آج بھی یزیدیت کو روکا جاتا ہے، حسینیت کو نہیں روکا جاتا. لہذا آمادہ رہیں، اور میں آپ کو بڑی سنجیدگی سے بغیر ادھر ادھر جائے ہوئے میں آپ کو اس منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں. خدا راج بھائی کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے، ان کے اس بھائی کو غریق رحمت کرے جو کل تک یہاں حسین کا عزادار تھا. تو یہ نہ سمجھے کہ وہ آج نہیں ہے میرے درمیان، تو آج دکھائی نہیں دے رہا ہے تو وہ میرے پاس نہیں ہے. حسین نے ہمیشہ زندہ کیا ہے، کسی کو مارا نہیں ہے. اما بولا کرو ذرا سا. حسین نے ہمیشہ سب کو زندہ کیا ہے، کسی کو مارا نہیں ہے. راج بھائی سے 2 منٹ کی گفتگو ہوئی تھی جس سے میں نے اندازہ لگا لیا. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بندہ نبی کی بارگاہ میں آیا، جملہ جو کو رائے گا نہ جانے دیجیے گا. تاریخ تھی بندہ نبی کے پاس آیا. اب سوال یہ کر سکتے ہو کون نبی ہے؟ آدم نبی ہے، نوح نبی ہے، ابراہیم نبی ہے، موسیٰ نبی ہے، عیسیٰ نبی ہے، داؤد نبی ہے، موسیٰ نبی ہے، ابراہیم نبی ہے. نہیں، نبیوں کا سردار ہے جسے طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، وارث کعبہ کہا، وارث بشریت کہا. آدم رسول نہ ہوتا، آدم نہ ہوتا، رسول نہ ہوتا، نوح نہ ہوتا. اس نبی سے ایک بندے نے آ کے کہا یا رسول اللہ خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں. کہا یا رسول اللہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا. پوچھا کیوں نہیں مرنا چاہتے؟ کہا اس لیے کہ حسین کا جلوس ہوگا، اس میں شرکت ہوگی. حسین نصرت کے لیے بلائے گا، اس میں شرکت ہوگی. رسول اللہ نے کہا تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ابھی سوچا. ارے یا جملہ سنو، یا جملہ تو ابھی سوچا. یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا مرتے وہ لوگ ہیں جو یزیدیوں سے تعلق ہے. رسول کا یہ جملہ بتا رہا کہ ابھی سوچا، ابھی سوچا، ابھی سوچا. اے مولا کہا سونے والے مرتے نہیں ہے. ہم نے کہا مرتے کون ہے؟ کہا جس کے پاس علی کی ولایت نہیں ہوتی. اے مولا پھر کیا کریں؟ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ارواحیں نہیں آتی ہے، ارواحیں آزاد کر دی جاتی ہیں. اچھا جو جیسا منصب ہوتا ہے. آج دنیا میں جملہ سنیے گا، آج دنیا میں ساری طاقتیں ایک طرف. اما شیعت کو کیا چیلنج کرتے ہو؟ دنیا آج تک ایسا گھوڑا نہ پیدا کر سکی. کہاں ہو؟ کہاں؟ بولو ذرا منہ سے. اس لیے کہ یہ چاہے جتنا تمہارے قبضے میں نہ ہو، یہ تمہیں برداشت نہ کرے، کہ تمہاری سواری نہ برداشت کرے. حسین کا نام لے کے اس کے جسم پر چادر ڈالو، یہ ایسے چلے گا جیسے فرما بردار بندہ چلتا ہے.
खमीर है वहीं चला जाता है, खराज अदीद पेश कर रहा हूं। तो भतीजाने मोहतरम ये फोटो जो लगी ना पिछले साल हमारे साथ थी, आज नहीं है, तो फिर नहीं है तो रसूलुल्लाह ने कहा सो जा, रसूल ने सो जा। या रसूलुल्लाह उस दिन क्या होगा? कहा वो और कौमों के रहबर होंगे जिनकी सुरुसत वहां तक नहीं होती, और कौम के लोग हो जिनकी मिसाल घर तक महदूद रहती है। तो मैंने कहा रसूल ने कहा सो जा। क्या रसूल की शर्त पे सो? कहा अभी सो, जुलूस के दिन उठा लूंगा। फिर क्या होगा? क्या उठाने का मतलब यह है कि करबला में हुसैन हवा देगा, तुझे उठा लूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिराहों से ये इतना बड़ा जुलूस ये पूरे मुल्क का जो पैगाम अमनियत दे रहा है, हिंदुस्तान की हुकूमतों को भी ये पता है ये सब सही आतंकवाद नहीं होते। इनको पता है कि यही है जो मुल्क को बचाए है, यही है जो शरीयत को बचाए है, यही है जो अमन को बचाए है, यही है जो बंदे को बचाए है, यही है जो हुसैन इब्न अली है। अजीजों सुनो, आज तारीख के और आपको पलट के देखो, जिसको 1400 साल पहले हिंदुओं ने नहीं घेरा था, पता नहीं क्या सुन रहे यार, जिनको हिंदुओं ने नहीं घेरा था साहिबे कलमा ने घेरा था। बंद कर दी तकरीर, नहीं समझ रही तो बोलिए, जिनको हिंदुओं ने नहीं घेरा था साहिबे कलमा ने घेरा था। भूखा रखा, प्यासा रखा। आज यजीद तेरे खानदान को चैलेंज लेकर जुमला पूछो, तेरे नाम पर फकीर को भीख नहीं मिलती। 80 किलोमीटर पता है तुझे? 80 किलोमीटर का दस्तरखान पता है तुझे क्या है? हुसैन ने करबला में आवाज दी थी, जिंदा रहना सलामत रहना। आइए मैंने अपनी तकरीर समेट दी। हर इंसान अपने वजूद से पहचाना जाता है। पैगंबर ने कहा कि हुसैन तू अजमतों का चराग है, हुसैन तू अजमतों का चराग है, तो हिदायत का चराग है। हुसैन ने कहा, जुमला सुनिएगा, हर बशर अपने वजूद से पहचाना जाता है। जितने शिया यहाँ आए हैं, कोई अलम से पहचाना जाता है, कोई ताबूत से पहचाना जाता है, कोई काले कपड़े से पहचाना जाता है, कोई मिली से पहचाना जाता है। हर फिरका अपने मज़ाहिब के अपने रहनुमाओं से पहचाना जाता है। आइए आदम की बारगाह में पहुंचे, आदम से सवाल करे, आदम तो मकबूल बशर जरूर हो, लेकिन ये बताओ आदम तुम्हारी पहचान क्या है? तवज्जो, तुम्हारी पहचान क्या है? आवाज आई, अना मिनल मोहम्मद, मेरा वजूद मोहम्मद से है। नूह की बारगाह में आए, ए नूह तू बता तेरी पहचान क्या है? क्या अना मिनल मोहम्मद। मूसा की बारगाह में आ, तुझसे पूछा तेरी पहचान क्या है? क्या अना मिनल मोहम्मद। दाऊद की बारगाह में पहुंचे, बता तेरी पहचान क्या है? क्या अना मिनल मोहम्मद। इब्राहिम की बारगाह में आ, बता तेरी पहचान क्या है? क्या अना मिनल मोहम्मद। अर्श के पास आ, क्या अना मिनल मोहम्मद। फर्श के पास आ, क्या अना मिनल मोहम्मद। वजूद के पास आ, क्या अना मिनल मोहम्मद। जन्नत के पास आ, क्या अना मिनल मोहम्मद। कौसर के पास आ, अना मिनल मोहम्मद। पूरी कायनात रसूल अल्लाह से पहचाने गई, रसूल अल्लाह हुसैन से जाने गए, वरना खत्म हो जाती लिया सबको। अजाने हुसैन का सबका, रोजा हुसैन का सबका, ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन का सबका, सरबलंदी हुसैन का सबका, काबा हुसैन का सबका, कौसर हुसैन का सबका। अब ये ना कहना अगर दम हो तो बता हुसैन मर गए, बोला या बोला बोल रहा था, अगर दम है तो बताओ हुसैन मर गए। नौ के नेज़ा था, तो जो है जुमले पर तारीख ने जुमला लिखा कि नौ के नेज़ा पर सर चढ़ के ऐसे बोलता है जैसे पूरे जमाने का मुसलमान सर से गर्दन है तो भी नहीं बोल सकता। हुसैन ने नौ के नेज़ा पर ऐसा बोलता है कि दुनिया देख के कहती है यजीद गला किसका कटा है। अरे बोला बता गला किसका कटा है। तो हुसैन उस हजमत का नाम, जुमला सुनिए। अब जो पैगंबर ने कह दिया, अभी तकरीर में आपने पहली तकरीर में सवाल करवाया, मौलाना माहिर साहब कह रहे थे कि मुस्तकबिल हाल सुना था ना, मुस्तकबिल का नाम मोहम्मद है, हाल का नाम हुसैन है। अब मैं तुझे बताऊं, कायनात के हर जर्रे जर्रे पे बताऊं, पूरी दुनिया हुसैन से पहचानी गई ना। अब जब पूरी दुनिया हुसैन से पहचानी लगी तो कुछ अनासर लुत्फ़े यजीद, अरे बोलो मुसन्निफ़, कुछ ऐसे अनासर जिनको हुसैन न भाया तो कहने लगे मैंने ख्वाब में कल देखा है। बोला करो भाई, बोला करो।
अच्छा ये बता, जब तूने यजीद को देखा नहीं तो तूने पहचाना कैसे यजीद है? अरे बोलो बोलो बोलो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ये बता, जब तूने यजीद को देखा नहीं तो तूने कैसे कह दिया कि मैंने यजीद को देखा है? तू नहीं बोल रहा था, तेरे बाप का शजरा बोल रहा। तुझे पता भी है हुसैन कौन? उसके बाद कहता मैंने यजीद से पूछा कि तूने इमाम हुसैन को कत्ल किया? हमारे यहाँ बुढ़े नहीं होते, ज़ईफ होते हैं, बुढ़े पागल हो जाते हैं। दुनिया सुनिएगा, हमने कहा बता कि तूने यजीद को देखा नहीं? तो जब यजीद को देखेंगे, मैंने सवाल किया यजीद से कि तूने इमाम हुसैन को कत्ल किया? उसने कहा मैंने मारा नहीं। जुमला सुनना, हमने मारा नहीं। अच्छा, तो फिर जब वो मारा नहीं तो अल्लाह ने माफ क्यों किया उसे? अरे यार ऐसे सवाल करो। तो अजीजा ने बताया बस आखिरी जुमला है, तारीख में जुमला लिखा। अब ऐसे अनासिर पैदा होने लगे, तो ऐसे अनासिर पैदा हो तो बात किसकी है? अच्छा मैं कहूँ हुसैन जीता, दलील क्या है आपके पास? बोलो, इतना मुझे पढ़ने देना, बीच में डिस्टर्ब न करना। अगर मैं ये कहूँ कि हुसैन जीता, आपके पास दलील क्या है? मैं कहूँ यजीद जीता, आपके पास दलील क्या है? अगर मैं आम दलील दूं, मुसलमान नहीं मानेगा। मुंह से बोलो, आम दलील दूं, मुसलमान नहीं मानेगा। आदम की सीरत में जवाब दूं, आदम वाले नहीं मानेंगे। नूह के जमाने की मिसाल दूं, नूह वाला नहीं मानेगा। इब्राहिम की बात करूं, इब्राहिम नहीं मानेगा। काबे वालों की बात करूं, काबा वाला नहीं मानेगा। तो फरमाया आइए आदम के पास चले। आदम तो सबके बाप है ना भाई, अब तो इत्तेहाद वाली तकरीर है। बोलो ना बोलो, आदम के पास है, आदम सबके बाप है। अभी और बात है कि सबके बाप के बाप के बाप के पीछे क्या क्या लगा है, वो अपनी जगह है, लेकिन बाप तो सबके है ना। आइए आदम की बारगाह में चले। आदम के बताओ यजीद जीता या हुसैन? आदम ने जानते हो जब ये जुमले पे देखा तो कहने लगे क्या तुम भी ख्वाब देखने लगे हो? अरे यार बोलो मेरा भाई, बोलो जुमले पर। एक मिनट बगा, आदम ने कहा तुम्हें पता भी है? तुम ये पूछ रहे हो कि यजीद जीता या हुसैन? मुझसे पूछ रहे हो? मेरी दुआ न कबूल होती अगर करबला का मुसाफिर न होता। ये आदम की बात कह रहा हूं, आदम की बात। आइए नूह की बारगाह में पहुंचे। नूह यजीद जीता या हुसैन? तो तारीख कहती है नूह ने कहा मैं कश्ती बनाता था, कश्ती टूटती थी, गर्क होती थी। मैंने बड़ी मेहनत की। किसी ने वहां से कहा पंजतन के कीले गाड़, हाय 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 तेरी कश्ती बन जाएगी। लिहाजा मेरी नजर में तो हुसैन जीता। इब्राहिम की बारगाह में आए, इब्राहिम बता हुसैन जीता या यजीद जीता? अब तो इख्तलाफ नहीं ना, नबी को तो सब मानते हैं ना। इब्राहिम की बारगाह में इब्राहिम ने बता हुसैन जीता या यजीद जीता? टाइम बस मैं टाइम वक्त खत्म हो रहा है। तारीख ने कहा एक एक का जवाब होता रहा। अब जो आदम वाले थे बहुत तवज्जो है, 2 मिनट के लिए मुझे जमीन देना, 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब न होने देना। वहां खाली इतनी मेहरबानी करो कि रास्ता दे दो, रास्ता दे दो ताकि ये गाड़ियां चली जाए। जीवन में होता तारीख ने लिखा आप इनको रास्ता दो, आप इनकी हमदर्दी करो। ये हमारे सलात मोहम्मद आले मोहम्मद। बस चूंकि 2 मिनट की देर में तो साहब का हुक्म है, लिहाजा मैं अपनी तकरीर समेट रहा हूँ। आदम ने कहा, नूह ने कहा, इब्राहिम कहा, मूसा ने तकरीर समेट दिया मैंने। तुमने कहा, सबने कहा अगर आदम की बात माने गैर आदम वाले। बहुत तो मेरी बात सुनो 2 मिनट। आदम की बात कहेगी गैर आदम वाले नहीं मानेंगे, नूह की गैर नूह नहीं मानेगा, इब्राहिम के गैर इब्राहिम नहीं मानेगा, मोहम्मद की मुसलमान नहीं मानेगा, यहूदी की फला नहीं मानेगा। तो जो है जुमले पर आइए साहबा से पूछे तुम बताओ। तो साहबा ने कहा अगर हुसैन नहीं जीतेगा तो मेरी सहाबियत कैसे बचेगी? हाय 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 मैं कुछ कह रहा हूं तो बात खत्म हो गई। आखिरी जुमला बताएंगे, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। 2 मिनट की तकरीब है। जानते हो क्या कहा? अब मैंने दलील और मुझे देना है कि जो जिस मसलक को मानता है, जो जिस दीन को मानता है, अगर वो न माने तो इस्लाम नहीं। आइए कुरान से पूछे, कुरान तू बताओ हुसैन जीता या यजीद जीता? कुरान ने आवाज दी ए नफ्से मुतमइन्ना, हुसैन पलटा। दुनिया इबादत इसलिए करती है कि राजी हो जाए। अल्लाह ने कहा मैं राजी हूं, पलटा मेरी तरफ। बस मैंने आपकी जहमत तमाम की। काहे लिए आए हो? किस लिए आए हो? सज्जाद को दरबार में बुलाया गया है। ज़ैनब हाथों को जोड़ के कहती है सज्जाद तुझे दरबार में अकेले कैसे भेजूं? तो तेरे बाबा दरबार में गया था तो मेरे सारे तुमने वाले साथ थे। सज्जाद दरबार में पहुंचा, अब जो वापस आया है ना तो जुमला सुनोगे। हाथों में हथकड़ियां नहीं, पैरों में बेड़ियां नहीं, कमर में खामदार थी। एक मरतबा आवाज दी आओ
चले हम करबला की तरफ चले। मक्तल कहती है सज्जाद वापस आ गए, और सज्जाद ने वापस आकर जुमला कहा, सज्जाद ने जुमला कहा, अम्मा हम रिहा कर दिए गए। ये 2 महीना मुहर्रम करने वालों आओ ज़ैनब अलविदा, ये सकीना अलविदा, ये ज़ैनब अलविदा। काफिला आमदा हुआ, इधर शुहदाए सर आना शुरू हुए, एक एक सर आए, सबको बीवियों ने लिया। 2 नन्हे नन्हे सर आए, माँ बड़ी नेमत है। 2 नन्हे नन्हे सर आए जिनका लेने वाला कोई नहीं था। बस अज़ादारों, एक ज़ने अरब ने पूछा, अरे क्या इनकी माँ मर गई है? ज़ैनब ने कहा मैं जिंदा हूँ, मैं हुसैन का मातम करूंगी। बस अज़ादारों जुमला सुनिएगा, रिहाई मिल गई है, इधर काफिला तैयार हुआ है, इधर आमदगी हो गई है, इधर काफिला चलने लगा। एक मर्तबा सज्जाद ने कहा अम्मा बड़ा गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा मारबाब की हमारी खाली है, मारबा जुलूस में दिखाई नहीं देती। इधर काफिला चला, सज्जाद ने कहा अम्मा हमारी आगे बढ़ाओ, हमारे आगे बढ़ी जैसे तेरे जिंदान पर आई हमारी। एक मर्तबा सज्जाद ने कहा अम्मा रो। अब जो सज्जाद आगे बढ़े, देखा कब्र सकीना से रफा, हम वतन जा रहे हैं बेटा, हम वतन जा रहे हैं बेटा, ए कब्र सकीना से आवे। ए अम्मा, मेरे शीयों को मेरा सलाह, मेरे ज़ुमरा को मेरा सलाह। बस आखिरी जुमला सुन लो वज़ादारो। मक्तल कहती है लूटा हुआ काफिला चल रहा है, एक एक मक्तल में आया है। करबला में आ गए आले मोहम्मद। कल में ये मसाइल नहीं पढ़ सका था, बस एक मैसेज दे रहा हूँ। ए अज़ादारो, सज्जाद काफिला लेके चले। ए अज़ादारो, खुदा न करे तुम्हारे यहाँ कोई मौत हो जाए। एक मौत हो जाती है, 40 में कहता हूँ कितना होता है, कितने लोग आए हैं? अरे जिसके घर में 72 का 40वां हो, अज़ादारो औलो मोहम्मद अली अकबर, कितनों का 40वां है अज़ादारो। ज़ैनब अकेले मनाने आ रही है, इधर काफिला चला। ज़ैनब की हमारी है, उम्मे फरवा की हमारी है, लैला की हमारी है, सज्जाद की सवारी है, अब्बास का आलम है। एक मर्तबा करबला की सरहदों में दाखिल हुए थे। चौथे इमाम ने कहा अम्मा जरा 2 मिनट के लिए ठहर जा। पूछा क्या बात है? कहा भाई बेटा रुक जा। एक मर्तबा पूछा अम्मा बात क्या है? सज्जाद ने कहा अम्मा बन के नहीं कहूँ, मैं इमाम बन के हुक्म दे रहा, जुमला आपके हवाले कर रहा। अम्मा इतना सुन लो, बात क्या है? कहा बेटा सुनना, जो क्या बताना चाहते हो? कहा अम्मा जब करबला की जमीन में दाखिल होना ना, कैसे पूछा? 40 का। कहा जब करबला की सरजमीन में दाखिल होना, अम्मा थोड़ी देर रुक जाना, अम्मा थोड़ी देर रुक जाना। कहा क्यों? कई गाजी की कब्र सकीना का इंतजार। आ गई करबला अज़ादारो। वह मक्तल कहती है एक मर्तबा बीबियां रुकी, रुकने के बाद सज्जाद आगे बढ़े, कहते अम्मा ए लैला अली अकबर का पुरसा पेश कर दूं, अली अकबर की कब्र पर जा पुरसा देना, और मोहम्मद की कब्र पे पुरसा देना, अब्बास की कब्र पे पुरसा देना। ए अम्मा जो चाहे फरियाद करना, जितनी देर चाहे करबला में रुकना, लेकिन अम्मा बस होगी अलविदाई मिली। ए अम्मा एक काम करना का क्या? का जब भूलती हुई कब्र अब्बास की कब्र पर पहुंचना, रशन का वाकया सुनाना, दरबार का वाकया सुनाना, हमारी का वाकया सुनाना, मैसे का वाकया सुनाना। ए अम्मा सज्जाद तुझसे हाथ जोड़ के कहता है ए अम्मा अब्बास की कब्र पे सकीना का नाम न लेना। ए अम्मा पूछा क्यों? अब्बास के कब्र को ज़लज़ला मेरी बच्ची को अंधेरे से बड़ा डर लगता। इन्ना इलैहि राजिऊन।